नमस्कार साथियों। अनडिठे कावी टोटिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 5 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਟ, ਪੀਐਸਟੈਟ, ਸੀਟੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂੰ ਲੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਭੁਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਨੈਣ ਗਲੇਡੂ ਕਰ ਕਲੇਜੇ, ਧਨ ਸੁਰਤ ਜਿਸ ਸਦੜੇ ਭੇਜੇ, ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਭਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਾਜ ਭਿਅੰਕਰ ਡੈਣਾ, ਸਰਗੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੁੱਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਵਿਗੜੇ ਚਰਖੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੈੜਾਂ, ਕੌਣ ਲਵੇ ਕਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕੈੜਾਂ, ਕਿਰਮਨ ਕਿਰਨੀ ਤੁਰੀਆਂ ਸਹੀਆਂ, ਸਭ ਭੰਡਾਰ ਉਜੜਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਸਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਰਜਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਦੀ ਕਾਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਮਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੀੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੀੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਜੀੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੱਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਊੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੈੜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜੋਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਬੈੜਾ। ਊੜਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਈੜੀ ਨੰਬਰ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਸਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੈੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈੜ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਰੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਿਰਮਨ ਕਿਰਨੀ, ਕਿਰਮਨ ਕਿਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਨਮ ਕਿਰਨੀ
या फिर ये सारे ही सही हैं। साथियों इत्थे शुद्ध शब्द पूछा गया है, उसकी गल आई है, तो इन्हां चों किहड़े शब्दां दे बारे इस दे अंदर पूछा गया है। दूसरा कविता के अकॉर्डिंग ये गल पूछी गई है। तो कविता के अकॉर्डिंग जो आप इसकी गल करते हैं तो वह अपने को ईड़ी नंबर आ जाता है, किरनम किरनी की गल आई है। तो फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वह 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न के अंदर अपने तो पूछा गया है कि करक यानी करक तो की अर्थ लिया जाता है। तो साथियों करक तो पीड़, दर्द, सल या फिर ये सारे ही, जिमें कि कविता के अंदर भी आया है। पहले आप एक बार फिर कविता का पैरा ऊपर जाके देखांगे, क्योंकि कविता के अंदर जोड़ा करक शब्द आया है उन्होंने देखना बड़ा जरूरी है। इस के अंदर अपने को आता है कि मार उडारी तुरया जी साडा चिड़ियां दा चंबा, नैन गलेडू करक कलेजी, धन सुरत जू सदड़े भेजी। तो ये जो करक शब्द है, देखो ये पंक्ति के अंदर भी पता चले, नैन गलेडू यानी अखां के अंदर हंझू है, करक कलेजे, कलेजे के अंदर की है, पीड़ है। धन सुरत जिस सदड़े भेजे, सुनेहे ओह रुत नूं धन किया गया जिसने सुनेहे भेज दिते है। तो इस तरीके की यह शब्दावली है। तो इस हिसाब नाल अपने को इस विकल्प के अंदरों जो करक शब्द आ जाता है, अपने को जो 5वां प्रश्न सी, तो करक शब्द के की अर्थ ने। करक शब्द का अर्थ पीड़, दर्द, सल या फिर ये सारे। तो साथियों करक शब्द ये सारे ही अर्थ बन जाते हैं, पीड़ भी है, दर्द भी है तो सल भी है। राइट ऑप्शन अपना सस्सा हो जाएगा, क्योंकि इस दे अंदर ये गल्लां सारियां आ रही ने। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है जो आप देखना है, वो अपने को 6वां प्रश्न है। तो 6वें प्रश्न के अंदर साथियों पूछा गया है कि चमकन तारे भिन्नियां रहना ये की है। चमकन तारे भिन्नियां रहना ये की है, ये पूछा गया है। ऊड़ा नंबर अपने को है तारियां दी चमक, ऐड़ा नंबर है सुहावणियां रातां, ईड़ी नंबर है दुख भरियां रातां, तो सस्सा नंबर है ऊड़ा अते ऐड़ा दोवें। तो साथियों चमकन तारे भिन्नियां रहना यानी तारे चमक रहे ने ते जिहड़ियां रातां ने वह भिन्नियां ने यानी सुहावणियां ने, सुहारियां ने। तो यदा मतलब ये होया कि इस पंक्ति का अर्थ की है, ऊड़ा नंबर तारियां दी चमक, ये गल भी सही है, ये इस पंक्ति के अंदर आ रहा है। सुहावणियां रातां यानी भिन्नियां रहना, ये गल भी इसके अंदर आ रहा है। दुख भरियां रातां, तो साथियों इस इन्हां शब्दों के अंदर दुख भरियां रातां की कोई गल नहीं हुई, इसलिए आप ये विकल्प तो नहीं मान सकते। तो अपने को फिर सस्सा नंबर ऊड़ा अते ऐड़ा दोवें यानी ए ते ए वाला दोवें, तो अपने को ये दोनों राइट ने। तो इस हिसाब नाल अपना विकल्प इन्हां दोनों चों नहीं सस्सा नंबर हो जाएगा, क्योंकि सस्सा नंबर इन्हां दोनों की पैरवाई कर रहा है। तो अपने को सस्सा नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो 7 नंबर प्रश्न है जो आप देखना है। कवि किस रुत का धन्यवाद कर रहा है। कविता के अंदर भी आया है, जिहड़ी रुत ने उसनूं सुनेहे भेजे है, जिस रुत की इस दे अंदर गल आई है, तो उस दे मुताबिक कवि किहड़ी रुत नूं धन्यवाद करता है। जिस रुत नूं खूब धन दिता गया है। फिर ऐड़ा नंबर है जिस रुत ने प्रीतम के मिलाप वाले सुनेहे भेजे ने। ईड़ी नंबर है जिस रुत ने फुल्लां नूं महकना सिखाया है। तो सस्सा नंबर है इन्हां विचों कोई नहीं। तो साथियों आप कविता के अंदर भी ये गल देखी सी भी किहड़ी रुत, एक बार फिर देख लेने हैं कि किस रुत का कवि धन्यवाद कर रहा है। ये गल आप कविता के अनुसार ही दसनी हुंदी है। तो किहड़ी रुत का धन्यवाद कर रहा है। तो जिवें कि इस पैरे के अंदर आया है कि इस दे अंदर धन सुरत जिस सदड़े भेजी, इस दे अंदर साफ ही गल आई है, धन सुरत जिस सदड़े भेजी, कच भरिया मन परदेसी जीड़ा बहुत उदरिया जी साडा चिड़ियां दा चंबा। यानी इस दे मुताबिक जो अपने को विकल्प जिहड़े दिते गए ने, यानी उस रुत नूं ओह धन कह रहा है, धन्नवाद कर रहा है, जिहड़ी रुत ने उसनूं सुनेहे भेजे ने। सुनेहे तो इस दे अंदर जिहड़े सुनेहे की गल आई है उस
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ है, यानी एक कुड़ी दे अपने सहुरे घर जाने वाली गल आई है। तो इस के मुताबिक अगर आप गल करांगे तो अपने को इन्हां दे अंदरों ऐड़ा नंबर राइट विकल्प हो जाएगा कि जिस रुत ने प्रीतम के मिलाप वाले सुनेहे भेजे ने, कवि उस रुत का धन्नवाद कर रहा है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला विकल्प आ जाता है 8 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। हुण ये आप अज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैरे तो अकॉर्डिंग, कवि अनुसार चरखे कैसे हो गए हैं, यानी कवि के मुताबिक जिहड़े चरखे ने वो किदां दे हो गए। तो साथियों चरखे विगड़ गए हैं अते बैड़ा टुट गई हैं, कविता के अंदर गल आई होनी चाहिए है। ऐड़ा नंबर है सज्जन के मेल विच बिखड़ गया है। ईड़ी नंबर है अपने तो बेमुख हो गए हैं। तो सस्सा नंबर प्रीतम के साथ तो बिना दुखी है। तो साथियों इस दे अंदरों आ गल भी कविता के अंदर नहीं आई कि प्रीतम के साथ तो बिना दुखी है, आ गल भी नहीं आई क्योंकि प्रीतम नूं तो मिलन की गल हुई है। इसके अंदर अपने तो बेमुख हो रहे हैं, ये गल भी नहीं आई कविता के अंदर। सज्जन के मेल विच बिखड़ गए ने, मेल के अंदर बिखड़न का तो सवाल ही नहीं पैदा होंदा क्योंकि इस कविता के अंदर ऐसी कोई भी गल नहीं है। जदों कि ऊड़ा नंबर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, चरखे बिगड़ गए हैं अते बैड़ा टुट गई हैं, ये गल कविता के अंदर आई है। तो इस हिसाब नाल अपना राइट ऑप्शन है जिहड़ा वो ऊड़ा हो जाएगा। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हां दी अज आपां प्रैक्टिस की। मैनूं आस है कि आपनूं परीक्षा के अंदर ये मदद देणगे। जेकर तुसीं इदां दे छोटे छोटे टॉपिक बना के प्रैक्टिस करते रहोगे तो कामयाबी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बस जरूरत है रैगूलर प्रैक्टिस करन दी, हर वेले अपने सबजैक्ट के सिलेबस के नाल जुड़े रहण दी, बिना कोई विथ पाए अर्थात बिना कोई लंबा समा गैप देते हुए निरंतर तुसीं जेकर रैगूलर स्टडी करते हो तो कामयाबी अपने हाथों बाहर नहीं जा सकती। अज नहीं तो कल कामयाबी संभव ही है। तो ऐसे आस के नाल ते इन्नियां अरदासां दे नाल कि आप सब कामयाब होवोगे तो जल्द ये सुनेहे मेरे तक भी पहुँचाओगे। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर। इस तो पहले मैं एक गल होर दसनी चाहांगा कि कुछ साथियों ने इदां दे सुझाव रखे सन कि होर भी टॉपिक जल्दी तो जल्दी अवेलेबल करवाए जान। तो साथियों बहुत जल्द कोशिश करांगा कि कविता तो रिलेटेड जिन्ने भी जिहड़े कॉमन जे टॉपिक बनते हैं वो जल्द आप सब नूं मैं प्रोवाइड करवावां। जिवें रास छंद अलंकार दे जल्द ही टॉपिक लैके आ रहा हाँ, ऐसे वीक के अंदर आपनूं ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो ऐसे आस के नाल मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर। उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।